Dear students of class 11th, today we are going to study one more theory about the covalent bond formation. So far we have studied three theories. One is Lewis concept for the formation of covalent bond, which describes the bond formation in terms of sharing of electrons between two atoms or two or more atoms. But that theory failed to explain the structure of the molecule. So, to explain the structure of the covalent compounds, second theory was put forth, which was called Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. That theory successfully explains the structure of certain molecules, but fails to explain the structure of so many molecules. So that theory was also rejected rather. Then another theory was put forth, which is called as valence bond theory, and we have discussed this valence bond theory in length, where we have seen that the covalent bond is formed by the overlap of atomic orbitals, and then there we discussed the concept of hybridization, which elegantly explains the structure of the molecules. But this valence bond theory, it fails to explain some of the properties of compounds or rather molecules. For example, if we take the formation of oxygen molecule, O2 molecule, this valence bond theory successfully explains the formation of O2 molecule, but one thing which it fails to explain, that is the magnetic behavior of O2 molecule. As per valence bond theory, oxygen molecule should be diamagnetic in nature. It should be diamagnetic in nature. But in actual practice, we observe that this oxygen molecule, it is paramagnetic in nature. So this valence bond theory, it fails to explain the magnetic behavior of oxygen and so many other compounds and molecules. So in order to explain the paramagnetic behavior of oxygen and bond strength and number of bonds, etc., of the covalent compounds, another theory was put forth by two scientists, Hund and Millikan. Hund and Millikan. This theory is known as molecular orbital theory. It has been put forth by them in the year 1932. Today, we are now going to discuss about this molecular orbital theory. So, as per this molecular orbital theory is concerned, it is an important theory. Here we discuss only the elementary idea of molecular orbital theory, and we discuss only homoatomic molecules, formation of homoatomic molecules, and that too of the second period, first and second period, not beyond that. So let us now come to this molecular orbital theory. So according to this molecular orbital theory, a molecular orbital is formed when atomic orbitals of two combining atoms combine overlap each other. That means this molecular orbital theory, I may write it in short form MOT, this theory, it also begins with atomic orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल से ये शुरू होती है और ये थ्योरी कहती है कि जब मॉलिक्यूल बनता है, व्हेन ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तो ये बनता है व्हेन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है,
because of that overlapping, molecular orbital is formed. Molecular orbital is formed, and this atomic orbital, it loses its identity. Atomic orbital loses its identity, and new molecular orbital is formed. तो जो ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए। मैं सिंपल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। सबसे पहली बात यह है, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइनिंग में हमने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वही ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल बन जाता है। मगर जहाँ तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ताल्लुक है, इसका एक डिफरेंट व्यू है, जहाँ पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डिफरेंट है। इसका व्यू ये है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम दो कंबाइन करके, टू और मोर एटम्स, व्हेन दे कंबाइन, एटम्स कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है, अगर हम डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें दो एटम कंबाइन करेंगे। दो एटम कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि इन दो एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस आ जाएंगे दो एटम्स के। और अब जो एटम थे, एटम के ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो इससे पहले कम्बिनेशन से पहले एटमिक ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते थे, अब जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब उसी में ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम एटमिक ऑर्बिटल्स, एटम्स जब कंबाइन करते हैं, एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटम में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे एटमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वैलेंस शेल के एटमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, नहीं। जिस वक्त एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम्स के सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, चाहे वो कंप्लीटली फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो। एक एटम में जितनी भी ऑर्बिटल, बात नोट करके रखिए, एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो दूसरे एटम के सारे एटमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करते हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तब्दील हो रहे हैं। और ये एटमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद एटमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब ये जो न्यूक्लियस हैं, इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब वहाँ पर कोई एटमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनने के बाद मौजूद नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन जिस तरह से एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2px होता है, फिर 2py होता है, फिर 2pz होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स एटम के बाहर होते हैं। ऑर्बिटल आप जानते हैं, इट इज़ द रीजन वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसी तरह से जब मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, कम से कम डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स में तो दो न्यूक्लियस होते हैं। अब इन दो न्यूक्लियस के बाहर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने एटमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। यानी गर्ज ये है कि जिस तरह से एक एटम में एक से ज़्यादा एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह से जब मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल में भी एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एटम जो है इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। अब ये देखना है कि एक मॉलिक्यूल के बाहर
कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके मुतलिक आप ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, जब दो एटम कंबाइन करते हैं, इनके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस मॉलिक्यूल में होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, number of atomic orbitals taking part in overlapping, taking part in overlapping, इन ओवरलैपिंग में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह दो एटम इस तरह कंबाइन करते हैं कि इन दो एटम्स का एक एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है, जैसा कि आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन आप देखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स विल कंबाइन। एक हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल है, दूसरे के पास भी 1s ऑर्बिटल है। अब जब दो ये एटम हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इसका मतलब है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, अब जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास दो न्यूक्लियस होंगे। अब इन दो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, एक ही नहीं दो, 1s और 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उससे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग यानी इसका मतलब है जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, तो कम्बिनेशन के दौरान, ओवरलैपिंग के दौरान जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे, उनमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, आधे एंटी। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो भी चार ही बनेंगे। चार में से दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। इसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एडिशंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। जो एंटी बॉन्डिंग है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये पॉइंट नोट करके रखिए कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल बनता है व्हेन दो एटम्स कंबाइन करेंगे। तो जब एटम्स कंबाइन करेंगे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइड्रोजन में जैसे मैंने बता दिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक को हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर कहीं पर दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा लेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उसी हिसाब से बनेंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मिसाल तौर पर अगर हम लिथियम मॉलिक्यूल की बात करेंगे, Li2 मॉलिक्यूल, ये बनेगा जब दो लिथियम एटम कंबाइन करेंगे। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s1, तो इसकी भी होगी 1s2 2s1। तो जब दो लिथियम कंबाइन करेंगे, तो इसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो इस कम्बिनेशन में क्या होगा, क्योंकि चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन चार में से दो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से लिथियम मॉलिक्यूल के बाहर जो लिथियम मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस हैं, दो एटम्स के दो न्यूक्लियस, उन न्यूक्लियस के बाहर चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, चार में से दो बॉन्डिंग होंगे और दो एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करके रखोगे, वो ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वजूद में आ जाते हैं, तो नोट ये करना है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी जो होती है, इसकी एनर्जी लोअर होती है, इट इज़ लोअर देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, इसकी एनर्जी जो है, दैट इज़ लोअर देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसी तरह से एक और पॉइंट नोट करना है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं,
चूँकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैपिंग किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, या हम कहेंगे हुज एनर्जी इज कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं दे ओवरलैप ईच अदर। और इसके अलावा इनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर orientation. Those atomic orbitals combine to form a molecular orbital which are of comparable energy and which have proper orientation. अब जिस तरह से हम देखेंगे 1s ऑर्बिटल जो है ये 1s के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि एक तो इनकी ओरिएंटेशन सेम है, दूसरा इनकी एनर्जी एक जैसी है। उसके बरक्स अगर हम लेंगे 1s एंड 2s, ये दोनों कंबाइन नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। हालांकि इनकी ये जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, मगर इनकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, एक जैसी नहीं है। 2s की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1s, इसलिए 1s और 2s के दरमियान ओवरलैप नहीं होगा। उसके बरक्स 2s और 2p के दरमियान और 2s और 2pz के दरमियान ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन सेम है और इनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है। उसके बरक्स 2s और 2px के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एनर्जी इनकी तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, एक जैसी है, मगर इनकी ओरिएंटेशन एक जैसी नहीं है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो 2px, 2py, 2pz ये तीन ऑर्बिटल जो हैं इनमें से हम z ऑर्बिटल को ले रहे हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए x और y जो हैं दे लाई परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज व्हाई 2s ऑर्बिटल्स अनएबल टू ओवरलैप or to combine with 2px and 2py orbitals. So for the formation of a molecular orbital, it is necessary that the atomic orbitals should be of comparable energy and they should have proper orientation. And number 5, important point, when different atomic orbitals now combine, s can combine with s can combine with 2pz, p orbital can combine with pz, 2pz will combine with 2pz, 2pz cannot combine with 2px because they don't have proper orientation, but 2px will combine with 2px. So when different atomic orbitals combine to form molecular orbitals, they will form molecular orbitals of different types. Accordingly, these molecular orbitals are termed as sigma molecular orbital, pi molecular orbital, delta molecular orbital. And it should be noted that sigma, pi and delta, they are used to represent different bonding molecular orbitals. And if we have to represent anti-bonding molecular orbitals, then we represent them as sigma and we put an asterisk at the top of sigma. This is sigma anti-bonding. In the same way, there will be pi anti-bonding. There will be delta anti-bonding. So these are bonding molecular orbitals. These are anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals are represented by sigma, pi and delta, while as anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, delta star. And one thing more, since a molecule contains at least 2 nuclei in it, now we came to know that outside these 2 nuclei there are so many molecular orbitals. Some of them may be bonding molecular orbitals and some may be anti-bonding molecular orbitals, and these orbitals have different types of energies. Bonding molecular orbitals have lower energy than corresponding anti-bonding molecular orbital, and these orbitals, molecular orbitals like sigma, pi, delta, they differ in energies as atomic orbitals do. As we see, 1s and 2s have different energies, 2s and 3s have different energies. In the same way, these molecular orbitals also differ in their energies. So when a molecule is formed with different molecular orbitals, now the electrons which were earlier belonging to the atoms, now these electrons belong to the molecule. Now these electrons revolve around the nuclei of the molecule. So these molecular orbitals,
they contain now electrons in them, which come actually from the individual atoms. These electron filling in molecular orbitals, since there are different molecular orbitals, this filling in electrons in the molecular orbitals takes place according to those rules which we use in filling electrons in the atomic orbitals. That is, we use Abba principle, we use Hund's rule of maximum multiplicity, and we also use Pauli's exclusion principle. And you are already aware of these rules. They help us to fill the electrons in the various atomic orbitals, and the same way they will help us to fill the electrons in the various molecular orbitals of a molecule. Let me give a brief account. As per Abba principle, filling of electrons takes place through the least path of energy. That means electron will first enter that orbital first, that molecular orbital first, which will have lower energy. Then it will go to higher energy, the next to higher energy level orbital. In the same way, Hund's rule tells us that pairing of electrons does not take place if there are orbitals of the same energy available, empty orbitals of same energy. That means if there are more than one orbitals of the same energy available, then first one electron goes to each orbital, and when every orbital of the same energy gets one electron, then the pairing will start. And Pauli's exclusion principle says that every molecular orbital will contain only two electrons, and that two should contain and should have opposite spin. So this is a brief description of molecular orbital theory. Then inshallah tomorrow we will discuss its other features. So for today it is sufficient. Assalamu alaikum warahmatullah.